guest Maharaj Ji, Swami Parasatmananda Ji Maharaj. He will be felicitated by flower saplings. Give a big hand. Now our revered guest Maharaj Ji, Swami Sarvatmananda Ji Maharaj. Give a big hand. Now revered Secretary Maharaj Ji will be felicitated by flower pants by Sulabna Maiti. Now revered Arohi Singh. Arohi Singh. Started by Vedic chanting. It will be performed by Dibbo Devnath, Rishabh, Navneet, Prajesha, Prince, Siddharth, Vaibhav. Gurubhyo Namah Hari Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saviryan Karvavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti 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 Hari Om. Shanno Mitra Shamvaruna Shanno Bhavatvayama Shanna Indro Brihaspati Shanno Vishnurukrama Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti 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 Hari Om. Bhadram Karnena Shriyama Deva Bhadram Paschimakshabhiyajatra Sthirairangaisthushtvagam sastanuvi Vyaseva Devayitayadayu Swasti na Indro Hridashrava Swasti na Bhusha Vishwaveda Swasti nastaksho Arishthanemi Swasti no Brihaspate Dadatu. Om Shanti 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 Hari Om. Takshayoravini Mai Gatum Yagyaya Gatum Yagyapataye Devi Swastirastuna Swastirmanushekhram Urdhvam Jigatu Me Sajam Shanno Astu Dvipade Shanchatuspade. Om Shanti 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 Hari Om. Yaschandasha Vishavo Vishwarupa Chando Vyodamrita Sambhavuva Samidro Nihayasvinotu Amritasya Devadharano Bhuyasam Sariram Me Vicharsanam Jiva Me Madhumattamam Karnabhyam Bhuri Vishwan Brahmana Koshosi Me Gayapita Sutam Me Gopaya. Om Shanti
भविष्यति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। नारायण सूक्तम। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महादेवं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योति आत्मा नारायण पर नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण पर नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण पर यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितम् अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकासगं निलयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ठापितस्कान्ते नागामुपतिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महतः सन्ततगं शिलाभिस्तुतं भद्राकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्नि विश्वाचिर्विश्वतोमुखः शुभ्रभूमि भजन्तिष्ठ नाहरं भजरकवि तीरभूतं मदस्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थिता नीलतो यदमध्यस्थरुद्युल्लेखेव भास्वरा नीवाशोकवत्कन्नि पीताभाषत्तनूपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता सगमस्य शिवस्य हरिश्चेन्द्र सोऽक्षरः परमेश्वरात् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। Thank you to our beloved students. So, a cool good evening, revered guest Maharajis, revered Secretary Maharaji, revered Principal Maharaji, esteemed teachers, dear parents, and my beloved students. We extend a warm welcome to each one of you to our annual day celebration. It is an evening filled with excitement, enthusiasm, and pride as we come together to celebrate the incredible achievement of our school and the wonderful talents of our students. The annual day celebration is not just a function, it is a grand occasion to showcase the hard work, creativity and dedication of all the
principal, students, teachers who have worked tirelessly throughout the year. Today we celebrate the culmination of their efforts with a series of vibrant performance and displays of talents. Before we dive into the festivities, we take a moment to thank our revered Grace Maharajis, Swami Parasatmanandaji Maharaj and revered Swami Sarvottomanandaji Maharaj, who have come to attend our annual celebration to bless our students as well as all the guardians, parents, students. We know that they are very busy and they have given their valuable time from their busy schedule. We thank also to our revered Secretary Maharaji, revered Principal Maharaji, esteemed teachers, staff for their constant support and guidance and encouragement. Now, our revered Brahmachari Vilas Maharaji will sing Amba Stotra. It is written by Swamiji. Maharaji, please. Yasya
मितशक्तिपाल यस्य विभूतयुः मितशक्तिपाल नास्वेत्यथां वदतु तं शरणं व्रजामः। Thank you, Maharaji. I would like to call my beloved students, Mr. Sugam Kunal Kassap and Mr. Sarthak Ranjan, to conduct the rest of the program along with our respected DM sir. In this journey, I'll go the extra mile. Introducing myself, I'm Sugam with a smile. As you know, I'm Sugam Kunal Kashyap, your host for today's program. And I'm thrilled to be here with my co-partner Sarthak Ranjan. Together, we will ensure that this year's annual function is an unforgettable experience for all of you. To reach the top is our ambition. Welcome to the annual fest of Ramakrishna Mission. Namaste and warm greetings. I'm honored to stand before you as the anchor of this grand event.
our school's annual function. On behalf of the entire school family, I extend a warm welcome to our distinguished guests, revered guest Maharajis, revered Secretary Maharaji, and revered Principal Maharaji. Grateful for your presence. Your guidance and support have been instrumental in shaping our institution, and we are thankful for your unwavering commitment. To our esteemed teachers, I offer my sincerest gratitude for your tireless efforts in nourishing and guiding us. Your patience, dedication, and passion for teaching have made a profound impact on our lives. To our guardians, we appreciate your unwavering support and encouragement. Your trust in our institution is a testament to our school's commitment to excellence. To my seniors, juniors, and friends, I welcome you all to this grand celebration. Today, we together come here to rejoice in our achievements, showcase our talents, and strengthen the bonds of friendship and camaraderie. As you know, we gather here today to celebrate our school's fest, to acknowledge the hard work and dedication of our students, teachers, and staff, and to create memories that will last a lifetime. Today's program promises to be an exciting and entertaining experience, with a range of performances, awards, and surprises in store for you. As we gather here today, we are reminded of the values that our school embodies: knowledge, discipline, and service. We are proud to be part of an institution that strives for excellence and fosters in all aspects of our life and a culture of mutual respect and understanding. Before we begin the festivities, I would like to take a moment to acknowledge the hard work and dedication of our school staff, teachers, and students. Your efforts made this event possible, and we are grateful for your contribution. I would like to express my gratitude to my co-anchor Sarthak Ranjan for his support and collaboration. Together, we are excited to bring you an entertaining and memorable program. Sarthak and I will ensure that the program runs smoothly, and we have an amazing lineup of performances and events planned for you. So sit back, relax, and enjoy the show. With that, ladies and gentlemen, I declare our school's annual fest open. Let's come together to celebrate today's event. Thank you everyone, and let the festivities begin. Birds do live in the nest, let's celebrate our school fest. And now, it's time to reflect our journey and milestones over the past years. Please join me in giving a hearty welcome to our revered Principal Maharaji, who will present the annual report highlighting our students' achievements, progress, and future endeavors. Maharaji, please. Om Namaste Yatirajaya Vivekananda Suray Sache Sukha Sarupaya Swamine Tapahari. My pranam to revered guest Maharaj Ji, Swami Parisatmanand Ji Maharaj, Swami Sarvottamanand Ji Maharaj, Swami Maheswaranand Ji Maharaj. My namaskar to all the teachers, parents, guardians, and my love to my all dear students. I am going to submit the annual report. I would like to offer my humble pranam to revered Swami Parisatmanand Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission, Ashram Raeganj, revered Swami Sarvottamanand Ji Maharaj, Vice Chancellor, Ramakrishna Mission, Vivekananda Education and Research Institute, and revered Swami Maheswaranand Ji Maharaj, Secretary of our ashram. My loving namaskar to all my dear brother monks and brahmacharis. Ramakrishna Mission Vidya Mandir was established in 1951 mainly to cater to the needs of displaced persons from the then East Pakistan. It is guided by principal under the ultimate supervision of the Secretary Ramakrishna Mission Ashram Katihar, which is a branch center of Ramakrishna Mutt and Mission, having headquarters at Belur Mutt.
The school has got composite provisional affiliation for secondary school examination and senior school certificate examination of Central Board of Secondary Education, that is CBSE. It will not out of place to mention that ours is the only CBSE affiliated school in the entire Bihar being run by Ramakrishna Mission. Let me take the opportunity to enlighten you about the activities in our school. We aim at giving boys and girls such education which would help them develop a sound mind in a sound body. Great care is taken to develop the moral character of the students in conformity with Swami Vivekananda's ideal of self-reliance, service and dedication. Stress is laid to develop the students in all directions, physically, intellectually, socially, morally and spiritually. Particular stress is laid on growing clean, disciplined habits. Since the beginning of the session, parents-teacher meetings are being held to appraise the guardians about the progress of their wards. Besides this, guardians are at liberty to come to school to interact regarding the progress in study as well as in discipline of their wards. In our school app, detail of each student can be seen by his/her guardian. Stress is given for regular attendance and a student is awarded marks for the same. As per CBSE directive, 3 examinations are held in a year to assess the progress of a student. In addition to this, class tests on different subjects are held. Stress has been given so that a student can attain good marks in all the subjects. Keeping in tune with the modern method of teaching, smart panels have been installed in many of our classrooms. Now there are 11 smart panels and we are contemplating installation of smart boards in all our classrooms. To facilitate the easy access to drinking water, in addition to the existing water taps, some more basins have been installed in the first floor and in ground floor. As per CBSE guidelines, our students enthusiastically participated in cultural program, plantation of saplings and cleanliness of the campus. Speech recitation and handwriting, rangoli, ball matching and sports competitions are organized. Dates of national importance like 23rd January, 26th January, 15th August, 11th September and 2nd October have been observed in a befitting manner. Mr. Jayanto Kumar Ghosh, an alumnus, handed over the certificate of Vijay Shankar Ghosh Memorial Scholarship that he has instituted in memory of his father. Each year, 9 students are benefited from this scholarship. We are also indebted to our headquarters for sanctioning IDBI Bank Golden Jubilee and Infosys Foundation Scholarship for our school. We express our gratitude to them. We leave no stone unturned for commendable performance of our students. Last year, out of 102 students, 11 have secured more than 90% marks in aggregate. But there is no room for satisfaction. We shall continue our effort to make better result of our students. Our school is at the threshold of reaching 75 years. We have plans to celebrate it in our own humble way by the blessing of the Holy Trinity. Lots of development works are stranded for lack of funds, but we are sure to fulfill our dreams through the blessing of Thakur, Ma and Swamiji, as well as from the help of our benefactors and well-wishers. May Thakur, Holy Mother and Swamiji be our guide in our thoughts and actions. My pranam to revered monks and all the monastic brothers. I offer my namaskars to distinguished guests and guardians. Om Shanti, Shanti, Shanti. अपने कुछ खास शब्दों को हमारे साथ साझा करें और हमें एक नई राह दिखाएं। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस मंच में उपस्थित
आज के प्रमुख अतिथि श्रद्धेय स्वामी परिशात्मानंद जी महाराज, जो रायगंज से पधारे हैं, स्वामी सर्वोत्तमानंद जी महाराज, जो हमारे रामकृष्ण मिशन विश्वविद्यालय हैं उसके वाइस चांसलर कुलपति हैं, सम्माननीय प्रिंसिपल महाराज, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं आपको महाराज जी से परिचय अभी अपने सुना। रामकृष्ण मिशन की बहुत सारी शाखाएं हैं, जो अभिभावक आए करके मैं बच्चों को बताता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि लगभग 300 के ऊपर शाखा रामकृष्ण मिशन की पूरे विश्व में है और 20 से ज़्यादा देशों में रामकृष्ण मिशन कार्यरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्कूल के नाम के पीछे इंटरनेशनल स्कूल, ग्लोबल स्कूल ऐसा लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में कटिहार में एक ही संस्था है, सचमुच वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसके कितने काम चलते हैं। शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं, आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में तो कर ही रही हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कार्य, राहत कार्य करते रहते हैं, ऐसे विभिन्न काम कर रहे हैं। और ये रामकृष्ण मिशन मतलब उसके सन्यासी, उससे जुड़े हुए भक्तगण और हम सब छात्र और अभिभावकगण, आपको सबको ये गर्व होना चाहिए कि इस संस्था से आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ से हमारा कटिहार जिला जो है या बिहार, इसके सीमा में लगा हुआ जिला है दिनाजपुर, वहाँ का रायगंज है। रायगंज में रामकृष्ण मिशन का अच्छा आश्रम है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी समय मिला तो आप जाइए, भव्य मंदिर है, अच्छा वहाँ बढ़िया मंदिर है और वहाँ हम लोगों के कुछ सेवा कार्य चलते हैं, गरीब बच्चों के लिए कार्य किया जाता है और धार्मिक आध्यात्मिक बहुत सारे काम चलते हैं महाराज जी के नेतृत्व में, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। और भी एक महाराज आए हैं। रामकृष्ण मिशन का एक बड़ा काम है, हमारा रामकृष्ण मिशन का एटोनोमस यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसके माध्यम से हम लोग शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं। आप लोग सब इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग को कहते हैं अप्लाइड साइंस, और जो बाकी हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, इसको कहते हैं प्योर साइंस। तो इस प्योर साइंस जो है, इस क्षेत्र में एक भारत की नामी संस्था के रूप में रामकृष्ण मिशन कार्य कर रही है, क्योंकि सबको अभी चल रहा है इंजीनियर बनना, ये करना, लेकिन उसमें कितना यह है। तो महाराज जी उस स्कूल के, कोई हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति है। छोटे से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बताता हूँ कि जैसे हमारा CBSE का स्कूल है, वो CBSE से एफिलेटेड है, वैसे यहाँ कटिहार में जितने कॉलेजेस हैं वो पूर्णिया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो कॉलेज में प्रिंसिपल रहते हैं और उसके ऊपर विश्वविद्यालय में जो रहते हैं वाइस चांसलर रहते हैं, कुलपति। तो हमारा कलकत्ता में विश्वविद्यालय है, उसका कार्य हमारा रांची में चलता है, वहाँ अलग काम चलता है। वहाँ जैसे अभी होता है प्योर साइंस नहीं, वहाँ हम लोग एग्रीकल्चर और ट्राइबल इसमें देते हैं, जैसे एजुकेशन देते हैं। हमारे कुछ यहाँ के छात्र भी वहाँ पढ़ के निकले हैं, अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग कोयम्बटूर में काम चलता है यूनिवर्सिटी का, जहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स टीचिंग, ये सब सिखाया जाता है। ऐसे ही काम कलकत्ता के नज़दीक नरेंद्रपुर में चलता है। तो ये सब काम जो चलता है, उसके मुखिया के रूप में, उसके सबके प्रमुख के रूप में महाराज जी कार्य करते हैं। तो आपके सबके तरफ से और संस्था के तरफ से महाराज जी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हमको बहुत खुशी है कि महाराज जी यहाँ आए हैं, हम उनकी वाणी सुनने आए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 2 बात बस बताऊँगा। एक तो है कि मैं परसों क्लास में गया था, बच्चों ने मुझको ये प्रश्न पूछा कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ये किस लिए करते हैं। तो आपके भी सबके मन में प्रश्न रहता है,
सांस्कृतिक कार्यक्रम किस लिए करते हैं? तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो केवल पढ़ाई से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे आयाम हैं, उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो उसमें एक पहलू है, मतलब जैसे हम शरीर अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए हमको अच्छा खेल कूद, व्यायाम, एक्सरसाइज होना चाहिए। वैसे ही कई प्रभावी व्यक्तित्व के लिए हमको अच्छा बोलना पड़ता है। कई हमको, अभी जो बच्चों ने वेद मंत्र के बताया, या किसी को अच्छा गाना आएगा, और सभी बच्चे अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना परफॉर्मेंस है वो दिखा सकते हैं। सब लोग अच्छे पढ़ाई के विद्यार्थी होते ऐसा नहीं है, वो हमारे हाथ में रहते हैं। तो सभी बच्चों को इसमें मौका मिले और बस सभी बच्चों को सभी प्रकार के ये जो आयाम हुए वो जानकारी हो उसकी और उनका मौका मिले, इसलिए इस मंच में सबको बुलाया जाता है। ये भी बात होती है कि आप अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटे कार्यक्रम है तो बहुत लोगों को सबको मौका नहीं मिलता है, कुछ चुने हुए को मिलता है। तो उसके लिए भी मैंने एक उपाय बताया, जो अभिभावक है उनको मैं बताता हूँ कि आपके बच्चे यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, मान लीजिए उनका ऑडिशन में नहीं हुआ कार्यक्रम, तो हम जो जन्मदिन करते हैं उसमें मोमबत्ती बुझाते हैं और केक काटते हैं, उसके साथ साथ अपने बच्चों को एक कार्यक्रम कर रखिए ना। वहाँ कोई लड़की झांसी की रानी सज के आए, कोई स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे, तो अपना घर का जो जन्मदिन है उसको इस तरह से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि जिसमें बच्चों को अपना परफॉर्मेंस करने के लिए मौका मिलेगा। यहाँ मंच में मिला तो मिला ही, और नहीं मिला तो भी उसमें दुख की बात नहीं, अपने घर में करिए, उसका वीडियो जो करना है करिए और वो शेयर करिए, तो बच्चों को इसको मौका मिलेगा। बच्चों को आते हैं घर में, दूसरे बच्चे आते हैं उनके सामने, तो इसको हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। विशेषकर हम जब स्वामी विवेकानंद जी के नाम से संस्था चलाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बच्चे लोग सुने हैं कि स्वामी विवेकानंद जी पढ़ाई में होशियार थे, खेलकूद में अच्छे थे, उनको वक्तृता करना आता था और बहुत तेज से बुद्धि उनका काम करता था। तो हम लोगों को सबको ये करना है, और इसका एक ही कारण, मतलब महाराज जी लोग बताएंगे, फिर भी मैं इसको बताऊं कि हम लोगों को सबको मन की एकाग्रता करके कंसंट्रेशन किए करना पड़ता है। अगर रामकृष्ण मिशन के हम छात्र हैं तो हमको ये आना चाहिए। क्या अंतर है रामकृष्ण मिशन के छात्र और बाहर के? तो ये कि उनको मन एकाग्र करने आता है, और इसके लिए जो पेरेंट्स आए, अभिभावक आए हैं, उनको ये मैं कहता हूँ कि अगर कोई गिलास में पानी है तो वो गिलास में से पानी गिरेगा, कीचड़ है तो कीचड़ ही गिरता है। तो हमारे बुद्धि में, दिमाग में जो बातें हैं वही हमारे से मुंह से निकलती हैं। अगर हम दिन भर राजनीति की बात करेंगे तो बच्चों के सामने भी हम राजनीति और दूसरी बातें बताते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबको ख्याल रखना है। बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, ये करते हैं, लेकिन मोबाइल लेके कोई पैदा नहीं होता है, हम ये हाथ में देते हैं और हमारे विचार होते हैं। तो हम लोगों को, आप लोगों को भी सबको, या अगर रामकृष्ण मिशन है तो मैं अगर किसी को पूछूंगा कि भगवान श्री रामकृष्ण को और 5 वाक्य बताइए, तो 2-3 गार्डियन छोड़ के किसी को मालूम नहीं है, जबकि बच्चे 10वीं तक पहुंच गए हैं। मैं उसमें दोष नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जानने से मदद होगी अपने बच्चों को। तो यहाँ आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम होता है, बोर्ड लगा रहता है, लेकिन उसमें हम सम्मिलित नहीं होते हैं। तो अगर आप में कुछ आ गया तो बच्चों में आएगा। क्यों बच्चों को 10वीं तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, फिर भी उनके ऊपर अनुशासन के लिए हमको खड़ा रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अगर 5वीं का बच्चा भी ये नहीं जानता है कि डस्टबिन में कागज फेंकना है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। 10वीं में जाए तो फिर बहुत दुख की बात है। तो ये केवल विद्यालय से काम नहीं होता है, स्कूल से नहीं होता है, हम लोगों को सबको मिल के करने का काम है। तो आप लोग भी आश्रम से अन्य गतिविधियों से जुड़िए। अभी कल ही सुबह ये महाराज जी लोग आए हैं, यहाँ भक्त सम्मेलन है, जाते समय आप चाहे तो ऐसे 50 रुपये का कूपन ले सकते हैं, भोजन की व्यवस्था सब है। आप कार्यक्रम में आइए, सुनिए क्या है, तो आपको पता चलेगा क्या होता है। और ये भी बात बताता हूँ कि जिनके बच्चे बड़े होते हैं उनको याद रखना कि केवल स्कूल नहीं, आश्रम है। आप बच्चों को लेने के लिए बचपन से आते हैं, छोटे बच्चों को 1-1 घंटा खड़े रहते, बाद में कोई सड़क से जाता है, आश्रम में आता भी नहीं है। नहीं आने से कोई नुकसान नहीं, भर बता रहा हूँ, लेकिन आने से आपका जरूर फायदा होगा। बच्चों का विकास होना है तो आपका भी विकास होना आवश्यक है, मेरा भी होना चाहिए। हम लोग भी महाराज लोग हैं, रोज होमवर्क करने जैसे पढ़ाई करते हैं, अपने अपने क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करते हैं, तभी जाके बच्चों के सामने खड़े रह सकते हैं। तो आप लोगों को सबको ये निवेदन है
अभिभावकों को और मैं बच्चों को कहूँगा कि आप ध्यान से महाराज लोगों की बात सुनिए। आप लोगों को जीवन में कुछ करना है तो महाराज जी आपको मार्गदर्शन करेंगे, उसको ध्यान से सुनिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इसी इच्छा है, इसके उद्देश्य के साथ कि आप लोग सब बड़े बने और स्वामी विवेकानंद जी के पद में आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद। His thought-provoking and uplifting address. His words have ignited a spark within us. We offer our sincere appreciation and gratitude for his presence and guidance. Now, it is our privilege and honor to invite our esteemed guest, Revered Parisatmananji Maharaj, Secretary R.K. Mission Raiganj, to share his valuable thoughts and insights with us today. Maharaj ji, please. Om Jananing Sharadam Deving Ramakrishtam Jagadgurum Padapadme Tayasitva Pranamami Muhum. I convey my humble namaskar and regards to our Secretary Maharaj of this ashram, Ramakrishna Mission, Katihar, our guest Maharaj, respected Swami Sarvottamanandaji Maharaj, Vice Chancellor, Ramakrishna Mission, Vivekananda University, Belur Math, dear and respected our Principal Maharajjis, respected guardians, teachers, non-teaching staff, and our dear students. I am thankful to our Secretary Maharaj for offering me this nice opportunity of being present here on such a wonderful occasion. My regards go to the monks and the teaching and non-teaching staff of this school, and special convey my respect to the guardians and others. I always feel it thrilling to be among the students of Ramakrishna Mission, as I myself was once a student of Sargachi Ramakrishna Mission High School. Perhaps you all know that Sargachi Ramakrishna Mission is the first center of Ramakrishna Mission, from where the lofty doctrine of Sri Ramakrishna, Shivagyani Jivo Seva, service to man is the worship of God, was first actualized by Swami Akhandanandaji Maharaj, who was one of the direct disciples of Bhagavan Sri Ramakrishna Dev. So, I always feel a special love for the students of Ramakrishna Mission. My dear student, always remember that as the students of Ramakrishna Mission, you should have some exceptional qualities which will always be shining all over your life. You must be convinced that you are not ordinary boys, you are extraordinary ones with special powers in your hearts. You are ever blessed by Swami Vivekananda, who always wanted that the youth of India must have three things in them. There are 3 P: purity, patience and perseverance. You must be pure to the core. You must have patience in every action of your life, and you always be persevering. These 3 things will make you a perfect one,
a complete man. You can win anything and everything with the power latent in your inner self. You must be aware of that power. You must not forget that you are not merely a frame of flesh and blood. You are a powerful house that can make impossible possible. Believe in yourself. Be convinced that you will be the monarch of all your survey. At the same time, Swami Vivekananda gave special stretch on 3H: head, hand and heart. Head stands for your intelligence, your brilliance, the power of thinking. Hand stands for your strength, your ability of working, and heart stands for love, selfless love, love for everyone, every being, every creature of this earth. Love is the force that binds one person with the others. So Swami Vivekananda gave his clarion call to us, Brahma hote kit paramanu, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে, এই সবার পাই। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। You must remember that God is not confined within the four walls of the shrines. He is within each soul. Each soul is potentially divine. If you want to worship God, give your selfless service to the poor, to the distressed, to the destitute of all. Once you are born, try to leave a mark on this earth. Suppose there are 5,000 yellow balls on the floor of a room. There is only one red ball on the floor. This red ball will attract the attention of everyone because it is exceptional. It is extraordinary. You also should try to be exceptional, extraordinary. The whole society will give a special attention to you. You will be an honorable in the society. Try to be perfect in every sphere of your life. Try to live like a man, not an animal. Follow the ways shown by Swami Vivekananda. Read his burning letters. You will be highly charged. You will find a new vivacity in yourself. I strongly hope that the students of Katihar Ramakrishna Mission Vidya Mandir will be in future the wonderful person with the help of 3P and 3H. May the blessings of Sri Thakur, Man Swamiji bestow on you all. Thank you. Namaskar. इस प्रकार मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय स्वामी सर्वोत्तमानंद महाराज जी को कि वह आए और अपने विचारों को हम सबके समक्ष रखें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुखद स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम पूजनीय स्वामी परेशात्मानंद जी महाराज, परम पूजनीय धनंजय महाराज जी, मेरे प्रिय सन्यासी भाई, प्रिय छात्राएं और अभिभावक, मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो हो कि सोच रहे होगे कि कब ये महाराज लोग सब अपनी बात ख़त्म करें, कब ये कार्यक्रम शुरू हो। तो इसलिए मैं तुम लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन अब यहाँ पे इतनी दूर से आया हूँ कलकत्ता से, तो दो चार शब्द तो तुम लोग के लिए कुछ उपदेश तो कहना ही पड़ेगा ना। हाँ, साधु लोगों का तो ये अधिकार होता है कि उपदेश देना है। ठीक है, इधर पे मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोग जोर से सिर भी हिला रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो मुझे तो कुछ कहना पड़ेगा।
महाराज जी लोगों ने जो बात कही उसके ऊपर ही मैं कुछ कहना चाहूँगा। शिक्षा के बारे में और स्कूल के बारे में, तुम्हारी जो पाठशाला की शिक्षा है उसके संबंध में मेरे जो विचार हैं, मुझे ये लगता है कि जो पाठशाला की शिक्षा है, जो स्कूल की शिक्षा है, हाई स्कूल तक के, ये जो है ये सर्वांगीण विकास के लिए, इसलिए इस तरह का जो कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और हमारे जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम भी होते हैं ना, जो आपके खेल प्रतियोगिताएं होती है, उसका एक प्रयोजन होता है। वह प्रयोजन हमारे धनंजय महाराज ने बहुत संक्षिप्त में बताया, सर्वांगीण विकास। तो ये पाठशाला का जो शिक्षा का कार्यक्रम होता है, ये सर्वांगीण विकास के लिए, तुम लोग के सर्वांगीण विकास के लिए। एक चीज मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि वह सर्वांगीण विकास तो है, लेकिन उसको तुमको गंभीरता से लेना चाहिए, है ना। जो मोटिवेशन, डेडिकेशन के साथ में वो काम करना है। जितना तुम उसको अपना श्रेष्ठता से कर सकते हो, जितना तुम उसको एक्सीलेंस के साथ में कर सकते हो, उतना तुमको करना चाहिए। मतलब हम लोग की, भारतीय लोगों की जो है वो एक है चलता है इस तरह की मानसिकता रहती है। तो जो भी काम हम करते हैं वो गंभीरता के साथ में पूरा मन लगा के करना चाहिए। तो जो तुम लोग, जैसे ये आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तुम्हारा गाना का नाच भी पूरा मन लगा के करना चाहिए। तुम लोग को तो मालूम होगा या नहीं भी मालूम होगा, स्वामी जी जो है, स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण, ये बहुत अच्छा गाते थे। स्वामी जी जो है, उनका जो शरीर भी है काफ़ी स्वस्थ था। वो जो है वो कुश्ती भी, उन्होंने कुश्ती का वहाँ पे उस समय जिम रहा करता था। उस समय भी कलकत्ता में अभी भी है, तो उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया था और वहाँ पे वो कुश्ती भी, उस समय बोलते मल्ल युद्ध में वो पारंगत थे। फिर उसके बाद में घुड़सवारी भी किया करते थे। क्यों? तो उनके ही प्रेरणा से हम लोग, देखो जब भी हम लोग कोई भाषण शुरू करते देखा होगा तुमने, हर महाराज जो है यहाँ पे नमः श्री यतिराजाय करके शुरू करता है। क्योंकि हम लोग जो ये शिक्षा वगैरह का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वो स्वामी जी की ही प्रेरणा है और स्वामी जी का ही आदेश। इसके लिए हम लोग जो है स्वामी जी को मन में याद रख करके हमेशा जो भी तुम लोग को कहना है, उपदेश देना है, वो हम लोग करते हैं। और हम लोग तो ये मानते हैं ना कि ऊपर में स्वामी जी की मूर्ति है, तो हम लोग ये मानते हैं कि स्वामी जी जो है अभी भी हमारे समक्ष जो उपस्थित हैं। इसलिए सब समय हम स्वामी जी की याद करके हम जो है स्वामी जी की ही बातें तुम लोग को बतलाते हैं। तो मैं धनंजय महाराज जी से बात कर रहा था, तो हम लोग इस बात पर कर रहे थे कि भाई बच्चे लोगों में अंतर क्या रहता है। तो मेरा ये विचार है कि तुम भी देखोगे कि क्लास में सभी लोग तो पढ़ाई करते हैं, सभी बच्चे लोग तो पढ़ाई करते हैं। क्या किसको हाथ दिखा रहे हैं, किसको टाटा कर रहे हैं? तो सभी बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चों में अंतर क्या होता है? तो बच्चों में जो अंतर होता है वो है एकाग्रता का, है ना। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन, डेडिकेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, चारों सब एक ही है। एक ही चीज ही बोलते हैं कि प्रतिबद्धता है, कि कौन कितना अपने पढ़ाई के प्रति या जो भी कुछ कर रहा है उसके प्रति कितना प्रतिबद्ध है। जो जितना प्रतिबद्ध होगा वह लड़का जो है क्लास में अच्छा नंबर मिलेगा। उसी को अगर वो गाना गाता है तो अच्छी तरह से गाएगा, या फिर खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो सबसे 1 नंबर का खिलाड़ी होगा। तो जो तुमको मैं रहस्य बताता हूं, 1 नंबर होने के लिए किसी भी चीज में 1 नंबर होना है। पढ़ाई में यदि 1 नंबर होना है, या फिर आपको गाने में भी 1 नंबर, कोई भी चीज खराब नहीं है। बल्कि हमारे अभिभावकगण जो है वो कहते हैं बच्चे लोग को कि नहीं, वो सब करने का समय है, आएगा, ये सब चीज जो है अभी पढ़ाई करने का समय। मैं इसको नहीं मानता। ये स्कूल के समय या पाठशाला का समय, मैं अभिभावक लोग को भी बोलता हूँ कि ये सर्वांगीण विकास का है। तो संगीत भी करना चाहिए, फिर दूसरी जो कलाएं हैं वो भी आपको बच्चे लोग को करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों करने का जो है ये पाठशाला ही स्वर्णिम अवसर। क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह में, उसमें सब देखेंगे तो स्पेशल टाइप का वहाँ पे एनवायरनमेंट, स्पेशल एजुकेशन है। हायर एजुकेशन सब आपके स्पेशल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए। तो यही समय है आपका जब सर्वांगीण विकास, आपका शरीर, मन, बुद्धि सबका आप विकास कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं अभिभावक से भी चाहूँगा और बच्चों लोग को भी बोलूँगा कि ये भी सब करना है, अपना सर्वांगीण विकास करना है। एक चीज़ है कि उसको आप है कि जो है गंभीरता से, कि मोटिवेशन, डेडिकेशन और परसिवरेंस, हार्ड वर्क लगभग एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ में करना चाहिए। मैं ये भी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में, हमारे हाथ में देखो हुनर नहीं है, टैलेंट नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हम पैदा हुए उस हिसाब से हमारा टैलेंट है। लक हमारे हाथ में नहीं है। लक तो जैसे भाग्य होगा वो होगा कि भगवान की कृपा हुई तो भाग्य हुआ, नहीं तो दुर्भाग्य हुआ, जो भी हुआ। ये सब चीज़ें जो है जन्म हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शरीर जो है उसके जीन्स हैं वो हमारे हाथ में है। लेकिन जो हमारे हाथ में है वह है कि जो हम जितना कर्म कर सकते हैं, हार्ड वर्क है ना, जो कठोर परिश्रम जो कर सकते हैं वो हमारे हाथ में। तो ये मोटिवेशन, डेडिकेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, इसको हम लोग इतना बार बार इसलिए क्यों करते हैं, कहते हैं क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है और इसी की सहायता से हम हर चीज़ों में एक नंबर आ सकते हैं। हम लोग ने किया है, इसलिए हम जो है 100% हम मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये कारगर होता है कि यदि तुम 100% अपना मन लगा के करोगे तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल गारंटी है कि तुम एक नंबर में आ जाओ। तो ये हार्ड वर्क से ही आप जो है मतलब मोटिवेशन, डेडिकेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी अंतर है कि मोटिवेशन, डेडिकेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मतलब वो टाइम, एफर्ट और अपना मन, मानसिकता, ये सब चीज़ों को देखेंगे, चारों चीज़ लगती है उसमें, है ना। उद्देश्य, मानसिकता, टाइम, एफर्ट, तो आप देखोगे कि टाइम से आप परसिवरेंस है, एफर्ट से आपका हार्ड वर्क है और डेडिकेशन है, मेंटल है, मोटिवेशन आपका ध्येय। तो ये सब चीज़ों को अगर आपने ठीक कर लिया है ना, तो ये आपके हाथ में है। इससे आप जो है वो टैलेंट को भी आप ओवरटेक कर सकते हैं, लक को भी ओवरटेक। लक तो खैर क्योंकि वो समसामयिक बातें होती है, उसको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल नहीं। कोई यदि लकी है स्टूडेंट, वो लक के कारण अच्छा नंबर मिल गया, अच्छा प्रतियोगिता बार बार नहीं होता है, तो आप उसको कठोर परिश्रम से उससे आगे चले जा सकते। इतना ही बोल करके मैं अपना वक्तव्य शेष करूंगा। ओम शांति शांति।